The Union Cabinet approved a new national education policy after a gap of 34 years. The National Education Policy 2020 is meant to provide an overarching vision and comprehensive framework for both school and higher education across the country. It is only a policy, not a law. Implementation of its proposals depends on further regulations by both states and centre, as education is a concurrent subject. On that note, I would like to first welcome our guest of honor, Dr. Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairman NCVT, for the next session, Role of Government and Real-Time Implementation of National Education Policy. Dr. Kalsi is presently the full-time chairman of National Council of Vocational Education and Training, the National Skilling Regulator, MSDE, Government of India. Formerly also chairman of Punjab State Police Complaints Authority after superannuating as additional CS Home Affairs and Justice, Government of Punjab. Dr. Kalsi has a wide experience in the education and HRD sector, encompassing technical education, higher education, industrial training, vocational education, skill development, and employment generation. He chaired the committee of members from UGC, AICTE, NCERT, CBSE, and iOS, and DOHE, DOSEL, Ministry of Education, and MSDE to develop a national credit framework for integrating academics, vocational skills, and relevant experiential learning credits, thus making skilling aspirational in the line with the new education policy of 2020. May I invite and call upon Dr. Kalsi to please grace us with his presence, and I also invite Mr. Pradeep Gupta, Chairman Cyber Media, to hand over a bouquet and our token of appreciation to Dr. Kalsi. Thank you, sir. Dr. Kalsi, inviting you to the dais. मेरी सारी प्रेजेंटेशन तो आपने पढ़ दी. My very dear friend PG, he is my senior from IIT Delhi, and lovingly we always called him PG. Now I have been wanting to see him for last year and a half. तो पहले कोरोना काल आ गया, उसके बाद मैं कुछ बीमार हो गया, मुलाकात नहीं हुई. So I am extremely happy that I am here to attend this function in person. Now I have been part of this initiative, Cyber Media Online, for a very, very long time. जब किसी के ख्वाबों ख्यालों में नहीं होता था कि साइबर मीडिया नाम की कोई चीज़ हो सकती है, तब पीजी ने ये कंपनी शुरू की थी. इट वॉज मच बिफोर द टाइम. और मैं समझता हूँ कि आज जो इंडिया आईटी का हब बना है, उसमें साइबर मीडिया ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा योगदान है. जो पीसी क्वेस्ट और डाटा क्वेस्ट आती थी, और उनके साथ जो एक सीडी और जो बाद में डीवीडी बन गई, वो जो दी जाती थी, उससे कितने हज़ारों लाखों बच्चों का भला हुआ है. कितने बच्चे वहाँ से डिजिटल मटेरियल उठा के सीखे हैं, ये मैं बता नहीं सकता. और आई जस्ट वांट टू शेयर पीजी विद यू दैट even today I have copies of all those CDs and DVDs on my hard drive. So I'm very happy to be here, and I would be talking about the implementation of NEP. Now I have only 10 minutes, so I'll go very quickly. I understand that there are educationists and the people from industry sitting here. I would like to say that NEP, National Education Policy, is a game changer. It's the vision of the Prime Minister, it's vision of this nation. It's a policy which came after 34 years of the last policy. However, this policy has a provision of creditization of all kinds of learning.
So they created a committee that how to go for implementing this NEP and actually putting it on the ground. So this committee consisted of people from all regulators and all ministries, and we worked on integration of academics, vocational skills and experiential learning. And what we covered is school education, higher education, technical education and vocational education. So ये प्रेजेंटेशन जो है ये NCVT वालों ने बनाई है, तो ये हमेशा ही वोकेशनल एजुकेशन को टॉप पे लिख देते हैं। इनको बहुत समझाया मैंने कि भाई स्कूल एजुकेशन पहले आता है, फिर एजुकेशन आ जाता है, फिर उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन आता है, बट इनका अपना प्यार है। नाउ व्हाट डज दिस framework says? See, this is a framework. This is a credit framework called National Credit Framework. This is not a policy. These are not guidelines. ये एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि हमने पाथवेज कैसे बनाने हैं और क्या क्या हमने इनेबल करना है। तो इसमें एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इनेबल्स क्रेडिट असाइनमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ लर्निंग, एक्यूमुलेशन, स्टोरेज, ट्रांसफर, रिडेम्पशन. It also allows multidisciplinarity and holistic education, that you can pick up various credits from here and there, and with the combination of those credits you can create a program and you can get credits for the program, you can get assessed and you can get a certificate, degree or diploma. फिर इसमें it enables multiple entry and multiple exit. It also enables इक्विवेलेंस बिटवीन जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन. हमारे देश में ये हमेशा ही ये एक अकाल रहता है कि एक बच्चा ITI में घुस गया तो दैट्स अ टर्मिनल एजुकेशन फॉर हिम, जैसे उसके बाद ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर पाएगा. सो दे नीड एकेडमिक इक्विवेलेंस. यार मैं कहूँगा बाहर कुछ लोग जो बोल रहे हैं ये अंदर ही आ जाए यार, तो यहीं आके बोल लें. कैन यू रिक्वेस्ट? इट ऑल्सो रिमूव्स एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन between general and vocational education, between the science subjects, art subjects, commerce subjects. किसी ने हिस्ट्री ली है या इकोनॉमिक्स ली है या इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, कोई फ़र्क नहीं है. एंड देन देयर इज इक्विवेलेंस बिटवीन द वोकेशनल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन. एंड बेस्ट इज दैट दिस इज ऑलरेडी aligned with the National Higher Education Qualification Framework and National Skill Education Qualification Framework, दोनों से aligned है. ये एक सिंगल टेबल में मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे काम करेगा. यू कैन सी 3 एक्सेस. एक्स एक्सेस पे एकेडमिक एक्सेस है जिस पे 1 से 8 तक के लेवल्स हैं, 1 से 4 तक स्कूल एजुकेशन है, 4.5 से 8 तक हायर एजुकेशन है. इसी तरह से 1 से 8 तक वाई एक्सेस पर स्किल एजुकेशन और जेड एक्सेस पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी लेवल्स अचीव्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंशियल लर्निंग. हालांकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है ये एक्स वाई पे भी कवर हो रहा है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दैट इज़ बिफोर अर्निंग द डिग्री, वेयर एज जेड एक्सेस पे जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है दैट इज़ आफ्टर यू हैव अटेन्ड द बेसिक डिग्री. ये फ़र्क है. नो आप देखेंगे कि लेवल्स जो हैं, चाहे एकेडमिक्स है चाहे स्किल है, सब में 1 से 8 रखे गए हैं. एंड इफ़ यू रियली लुक एट द इनपुट एंट्री लेवल्स, तो इनपुट एंट्री लेवल्स में यू सी फॉर लेवल 1 2 ऑफ स्किलिंग देयर इज़ नो एजुकेशन प्रिस्क्राइब्ड. सिमिलरली लेवल 2 and 3, 10वीं and 12वीं, एंड देन एज यू गो अप द एंट्री लेवल इज़ either you should be pursuing UG or you should be pursuing PG or you should be even PhD. लेवल 8 के लिए एंट्री क्वालिफिकेशन इज़ PhD. और तकरीबन उतने 100 घंटे की लर्निंग है इसमें जो उसका लेवल है. अगर लेवल 5 NCRF लेवल 5 की स्किलिंग है तो 500 घंटे की लर्निंग तकरीबन होगी. लेवल 8 के लिए 800 घंटे की लर्निंग होगी. एक इसमें हमने किया कि हमने स्पेसिफाई कर दिया कि चाहे कोई सब्जेक्ट हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट की बात हम करें, 1200 घंटे की लर्निंग पर ईयर वी विल हैव
एंड दिस हैज़ बीन एग्रीड टू बाय ऑल द रेगुलेटर्स। और इसमें 40 क्रेडिट्स जो हैं उसके हमने 1200 घंटे के किए, तो मोटा मोटी 30 आवर्स पर क्रेडिट इसमें कर दिया गया, 30 आवर्स पर क्रेडिट। हालांकि इसमें जब IITs इसको पढ़ाती हैं तो वो कहती हैं कि 15 घंटे का लेक्चर हो अगर एक सेमेस्टर में तो उसको 1 क्रेडिट मानेंगे, 30 घंटे के अगर लैब्स है तो उसको 1 क्रेडिट मानेंगे, 45 घंटे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है तो एक क्रेडिट मानेंगे, लेकिन एवरेज मिला के 30 आवर्स। स्पेशली स्कूल्स में तो मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ना मैं स्किलिंग में कर सकता हूँ, इसलिए थंब रूल हम लोगों ने बनाया कि 30 आवर्स पर क्रेडिट इसको हमने दिया कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह इसमें दिया कि जो एडिशनल प्रोग्राम्स मैं कर सकता हूँ 40 क्रेडिट से ऊपर अगर मैंने लेने हों तो वो भी मैं ले सकता हूँ, 40 के 44 हो सकते हैं। अगर मैं दिन में एक ऑफलाइन प्रोग्राम कर रहा हूँ, शाम को मैं ऑनलाइन प्रोग्राम करूँ तो 2 डिग्रियाँ इकट्ठे भी हो सकती हैं, और ये UGC अलाउ भी करता है। अब आता है कि जो NCRF में क्या क्या चीज़ें मैंने इंक्लूड की हुई हैं, क्या इंक्लूड किया हुआ उसमें मैंने क्लासरूम, टीचिंग, लर्निंग, लैब वर्क, क्लास प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल, सारा कुछ उसमें है। उसमें टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन सारी है, उसमें स्किलिंग है, स्किलिंग का प्रोजेक्ट वर्क है, फील्ड विजिट्स हैं, इंडस्ट्री अटैचमेंट्स हैं। उसमें ऑनलाइन, डिजिटल और ब्लेंडेड लर्निंग है, जो लास्ट सेशन चल रहा था कि ऑनलाइन लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग उसमें अलाउड है। फिर उसमें इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी उसमें अलाउड है। फिर जो समय मैं एग्जामिनेशन असेसमेंट के लिए खर्च कर रहा हूँ। फिर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फॉर एग्जांपल अगर नेशनल लेवल पे कोई अचीवर है, किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो क्या उसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, यस, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, ज़रूर उसको कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ उसका तरीका आपको आगे आएगा इसमें। इसी तरह से जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, योगा है, हैंडीक्राफ्ट्स है, बैगलेस डेज हैं। इसी तरह से सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, जो कंट्रीब्यूशन, जैसे सोशल वर्क में मैं कहूँ कि कंट्रीब्यूशन टू एडल्ट एजुकेशन, बच्चे हैं 6वीं क्लास के, 8वीं क्लास के, 7वीं क्लास के, वो जाके पढ़ाते हैं। अपने गांव में 10 बुज़ुर्गों को लेते हैं जो इनको लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको साक्षर बनाते हैं, उनकी वजह से उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। इसका प्रोविज़न भी इसमें किया गया है। NCC, श्रमदान, डिबेट, डिस्कशन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें when I say creditization of all kinds of learning, so there are only 2 preconditions to that. First is that we must clearly define the learning outcomes which the child is going to have, or which the student is going to have, which the learner is going to have. उसको क्या आना चाहिए इस कोर्स करने के बाद, इस क्वालिफिकेशन को करने के बाद, आउटकम मुझे चाहिए। मैंने उसका पेपर जो लेना है, पेपर नहीं, असेसमेंट करनी है कि उसको लर्निंग आउटकम्स ये आने चाहिए। और उसमें मैंने साथ में डिफाइन किया कि ये किस NCRF लेवल पर है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, लेवल 1 से 8 अकेडमिक्स भी है, 1 से 8 स्किल पर भी है, वेदर दिस इज़ अकेडमिक्स और दिस इज स्किल, और किस लेवल पर है और कितने घंटे की लर्निंग वो इसके लिए कर रहा है, क्या उसके आउटकम है, ये पहली चीज़ है। और सेकंड है कि असेसमेंट उसकी मैं करूँ, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट। जब तक उसकी असेसमेंट नहीं होगी मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा, ये क्रेडिट्स नहीं मिल पाएंगे। तो दैट इज सेकंड थिंग। सो असेसमेंट इज मैंडेटरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रेडिटाइजेशन। और इसमें असेसमेंट बैंड्स भी हैं, असेसमेंट बैंड्स भी हैं जो, जैसे मैं कहता हूं 10वीं का बैंड है, 12वीं का बैंड है, अंडर ग्रेजुएशन का बैंड है, पोस्ट ग्रेजुएशन का बैंड है, वो सारे बैंड्स उसमें दिए हुए हैं। और जो उसकी जो रेलेवेंस एंड वेटेज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड प्रोफिशिएंसी लेवल्स अचीव्ड, उसके ऊपर भी मैं बात करता हूं कि जब उसने एक लेवल अचीव कर लिया, उसके बेसिस पे उसको जॉब मिल गई, मान लीजिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया, तो कितने साल बाद वो नेक्स्ट प्रमोशन पाएगा, फुल प्रोफेसर कितनी देर बाद बनेगा, और उसके लिए मैंने क्या असेसमेंट करनी है। ठीक है, तो ये इसमें ऑनलाइन फिजिकल दोनों मोड की लर्निंग भी इसमें साथ इंक्लूडेड है। दिस इज द ब्लेंडेड लर्निंग विच लास्ट सेशन वाज टॉकिंग अबाउट। व्हाट वी हैव डन, वी हैव broken down the entire blended learning landscape into 7 verticals.
थ्योरी लेक्चर्स पहला वर्टिकल है, सॉफ्ट स्किल लाइफ स्किल्स दूसरा वर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेशंस तीसरा वर्टिकल है, प्रैक्टिकल स्किल्स और लैब वर्क चौथा है, ट्यूटोरियल्स असाइनमेंट्स ड्रिल्स एंड प्रैक्टिसेस पांचवा है, देन असेसमेंट इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन छठवां है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप सातवां है। और इसमें हमने डिफाइन किया है कि इनमें कितने कितने घंटे लगाने हैं, और हर एक किस्म की लर्निंग के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन का रेशियो क्या होना है। मैडम आप सुन लो, इधर बाद में कर लेना बात, इट्स डिस्टर्बिंग मी। ऑफलाइन ऑनलाइन का जो एक रेशियो है, वो रेशियो जो है इसमें मैक्सिमम मिनिमम डिफाइंड है, लेकिन उसमें किसी क्वालिफिकेशन के लिए क्या रेशियो रखना है, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द अवार्डिंग बॉडी जो सर्टिफिकेट अवार्ड कर रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं। नाउ देयर आर 37 सेक्टर स्किल काउंसिल्स नाउ, हाउएवर देयर आर 57 सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें कुछ के सेक्टर स्किल काउंसिल्स नहीं हैं, जैसे मरीन है उसका सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है, डिफेंस का सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है, डिफेंस प्रोडक्शन का भी कोई सेक्टर स्किल काउंसिल नहीं है। सो देयर आर सो मेनी एरियाज वेयर देयर इज नो सेक्टर स्किल काउंसिल। सो ये जो ब्लेंडेड लर्निंग है, इसका प्रोविजन फर्स्ट टाइम किया है, इसको पब्लिक कंसल्टेशन के बाद दिस हैज बीन प्रॉपर्ली नोटिफाइड, दिस इज नाउ अवेलेबल ऑन द NCVT वेबसाइट, यू कैन गो एंड सी, एंड दिस हैज ऑल काइंड्स ऑफ प्रोविजंस right from the simulators to digital twins to metaverses to AR, VR, every kind of technology is being used, and the levels have been defined कि इसमें इतने % हम ऑनलाइन अलाउ करेंगे, इतने % ऑफलाइन करेंगे, और किन कंडीशंस के साथ करेंगे वो कंडीशंस भी डिफाइंड है। सो आई वुड इनकरेज यू टू गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट। और ये जो नेशनल मीटा फ्रेमवर्क है, जो NCRF है, दिस इज ओनली वन सिंगल फ्रेमवर्क विच इज एप्लीकेबल टू द universities, to engineering colleges, to schools, to the skilling ecosystem, to the students who are outside the skilling ecosystem, सबके ऊपर ये समान रूप से लागू है और सब इसके नीचे आते हैं, और ये enabling framework है, this is not a regulation. So if you start asking me anything about implementation, कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने रेगुलेटर्स पे छोड़ी हैं और छोड़नी पड़ेंगी, because we cannot just sit down at one place and define every possible condition जो इसमें कवर हो जाए, ऐसा नहीं होता। और उसमें मुझे जो एजुकेशन इकोसिस्टम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी है, उसमें देनी है। जब तक मैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दूंगा बात नहीं बनेगी। तो इसलिए इसमें वी आर सेइंग दिस इज एनेबलिंग फ्रेमवर्क विच इज लेइंग डाउन द बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड अंडर दिस विद इन दिस फ्रेमवर्क रेगुलेटर्स एंड ऑटोनमस बॉडीज दे आर फ्री टू हैव देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस। तो इसमें सारे रेगुलेटर्स जो जैसे मैंने बताया, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इट। नाउ इवन दिस हैज़ बिन डिस्कस्ड with all the IITs, all the NITs, ICERs, all the institutes of national importance, IIMs, सबके साथ ये डिस्कस हुआ है, सबकी इनपुट्स आई हैं, इनपुट्स आके उसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग, एंड वी होप टू फाइनलाइज बाय 31st of December. And if I look at the comprehensive table starting from the 5th year foundational course, जिसमें 800 hours per year है, इसलिए उसके 800 hours के जो क्रेडिट्स बनते हैं 27 क्रेडिट बनते हैं, यू कैन सी जो क्रेडिट अर्नड पर ईयर के कॉलम में आया है। इसी तरह से 1000 आवर्स जो है वो क्लास 5 तक पढ़ाते हैं, तो 33 क्रेडिट्स हैं। उसके बाद 1200 घंटे की पर ईयर लर्निंग है, तो 40 क्रेडिट्स समान रूप से आए हैं बिल्कुल PhD लेवल तक। सो दैट इज़ हाउ इट इज़, एंड विद एवरी ईयर ऑफ लर्निंग आफ्टर क्लास 8 द क्रेडिट लेवल इज़ गोइंग अप बाई 0.5। सो 8वीं पे 2 है, फिर 9वीं पे 2.5 है, फिर 3 है, फिर 3.5 है, 12वीं पे 4 है, एंड सो ऑन. So that is how it is going. So this really integrates both the academic education as well as the skill education. दोनों तरफ से आप वो क्रेडिट लेवल अचीव कर सकते हैं जो डिफरेंट कॉलम्स में शो किया है. And this is how we creditize the experiential learning. If somebody is a professor, maybe after X number of years he will be known as proficient. उसको आप प्रोफेसर की बजाय उसको आप एसोसिएट प्रोफेसर कहो, रीडर कहो, देन फुल प्रोफेसर आप उसको कहो, देन उसको आप प्रोफेसर एमिरेटस कहो, आप डिफरेंट लेवल दे सकते हो. अगेन वी हैव लेफ्ट इट टू द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन एज टू हाउ एंड एट व्हाट वे दे डिफाइन अचीविंग दीज लेवल्स. हाउएवर दीज लेवल्स आर अचीव्ड आफ्टर दे हैव
अचीव्ड द बेसिक क्वालिफिकेशंस एंड दे आर एम्प्लॉयड। तो ये एम्प्लॉयमेंट के बाद की जो है रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और इसको हम प्रोफिशिएंसी स्टेप अप के लिए ले रहे हैं। दिस इज थर्ड एक्सिस विच आई टॉक्ड अबाउट। Similarly, there are special provisions about informal learning, non-formal learning and learning through any means including non-governmental NGOs। इनके थ्रू भी जो लर्निंग है उसके भी आउटकम हम ले करके उसी के बेसिस पर वी कैन गिव देम क्रेडिट्स। अगेन इट केटर्स टू अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, ट्रेडिशनल एंड हेरिटेज स्किलिंग। इसमें अगले 3 साल में तकरीबन 54% अपनी वर्कफोर्स है इंडिया की जिसको अपस्किलिंग या रीस्किलिंग करना है, बिकॉज वो चेंज आ रहा है पूरे इकोसिस्टम में। Oh, that's a very big opportunity for all of us. Now in NCVT, we are looking at all these aspects very closely. We are also looking at employability skills and future skills and emerging technology skills. 250 हमने already इसमें इंडस्ट्री के साथ बैठ के बनाई हैं. They are all available in the public space. Now we have something called NQR, National Qualification Register. So you can go and you can take out any number of qualifications from there. They are all in the public space. And we will also work on national occupation standards. Now every qualification is based on NOS. और ये NOS जो है इसके फर्दर हमने छोटे हिस्से किए हैं माइक्रो क्रेडेंशियल्स कि कई बार जो हायर लेवल ऑफिशियल्स हैं या आप समझते हो कि 7.5 घंटे से 15 घंटे से ज़्यादा की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, फुल फ्लेज कोर्स कराने की ज़रूरत नहीं है. सो इवन दैट अपग्रेडेशन शुड बी टेकन अप in the ecosystem and it should be creditized. So we have micro credentials, we approve micro credentials also. And I was discussing with PG that we also have the OEM based qualifications. आज अगर कोई बच्चा माइक्रोसॉफ्ट की स्किलिंग करता है, AWS पे करता है, Oracle पे करता है, उस सब की क्रेडिटाइजेशन का साधन बना दिया हमने. NASSCOM के थ्रू आता है, उसको एक पर्टिकुलर NCRF लेवल मिलता है, उसको नंबर ऑफ क्रेडिट्स मिलते हैं. Now this can be integrated with the undergrad education, वेदर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है. और साथ ही साथ इसके जो वी ऑल्सो हैव वेज एंड मीन्स टू क्रेडिटाइज द नेशनल इंटरनेशनल अचीवर्स वेदर इन स्पोर्ट्स और इंडियन नॉलेज सिस्टम और म्यूज़िक और हेरिटेज ट्रेडिशनल नॉलेज परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवन मास्टर क्राफ्ट्समैन. कुछ ऐसे क्राफ्ट्समैन हैं जिनको नेशनल लेवल के ऊपर पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया जाता है. उनको कैसे क्रेडिटाइज करना, उनको किस लेवल पे रखना है, उसका भी प्रोविज़न हम इसमें साथ ही साथ कर रहे हैं. आज की डेट में उनके लिए हाँ जी डॉक्टर का प्रोविज़न भी है जी, बिल्कुल है. आप इतने निराश क्यों हो गए? आएगा अभी. डॉक्टर का प्रोविज़न तो पहले ही है, उसको तो पहले इतनी बड़ी डिग्री दी है, गले में भी डाली है, उसके कार्ड पे भी लिखी हुई है. तो हम तो उन लोगों के लिए प्रोविज़न अब बता रहे हैं जो एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है आज की डेट में. तो डॉक्टर्स के लिए बिल्कुल प्रोविज़न है. पीएचडी के लिए प्रोविज़न मैंने बताया, पीएचडी लेवल 8 है, तो उनके लिए तो पूरा प्रोविज़न है, पूरी इज्जत के साथ प्रोविज़न है. तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्रेडिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है. जैसे मैंने कहा क्रेडिट ट्रांसफ़र कि एक इंस्टीट्यूशन से बच्चा दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है, 2 सब्जेक्ट हैं, दोनों के 10-10 क्रेडिट हैं, वहाँ भी सेम सब्जेक्ट्स हैं, वो क्रेडिट वैसे ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं. अगर उसमें से एक सब्जेक्ट है जो जिसके क्रेडिट ट्रांसफ़र हो गए, दूसरा सब्जेक्ट वहाँ नहीं चल रहा, उसके बजाय का और डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो उसको 10 क्रेडिट एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे. फिर ये भी हो सकता है कि एक क्रेडिट में से आधा वहाँ क्रेडिटाइज हो, आधा ना हो, तो हो सकता है उसको 10 क्रेडिट के बजाय 5 क्रेडिट एक सब्जेक्ट में करने पड़े, दूसरे में 10 करने पड़े. तो ये क्रेडिट्स जो हैं ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वो देखेंगे, दोनों की एकेडमिक बॉडीज़ देखेंगे कि इसने यहाँ पिछली इंस्टीट्यूशन में क्या किया हुआ है और उसको कितना मैंने उसको एडिशनल देना है. स्कूल एजुकेशन, ये 12th के इक्विवेलेंस का एक एग्जांपल लिया है कि एक बच्चा है जो 12वीं रेगुलर करता है या नहीं उसके थ्रू करता है. अगर वो 10वीं करता है, 2 साल की ITI करता है उसके बाद, और उसके बाद एक छोटा सा लैंग्वेज का 240 घंटे का एक छोटा एग्ज़ाम है जो NIA उसके थ्रू देके, उसको भी 12वीं का सर्टिफिकेट साथ मिलेगा. इसी तरह से 10th ग्रेड पास है, उसने 2 साल कर लिए हैं 3 साल के डिप्लोमा में, उसको भी 12वीं का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उसको मिलेगा. ये इसमें प्रोविज़न किया है. इसी तरह से अगर उसने छोटे छोटे कोर्सेज़ किए हैं लेवल 3.5 या 4 के ऊपर 40-40 क्रेडिट के, उनको एक्यूमुलेट करता है, एक छोटा लैंग्वेज का कोर्स करता है, वो 12वीं के इक्विवेलेंट उसको सर्टिफिकेट मिल सकता है.
So all this is the provision under the NCRF, now which would be notified shortly, and this would be applicable from the next session. इसी तरह से जो अगर मैं देखूं कि उसको यूजी सर्टिफिकेट लेना है, इसका मतलब यूजी फर्स्ट ईयर के लेवल पे जाना है, तो 12वीं के बाद वो 40 क्रेडिट करता है यूजी जो AICTE अप्रूव्ड किसी कोर्स में 4.5 के लेवल पे जा सकता है, या 12वीं के बाद वो 20 क्रेडिट जो UGC का कोर्स करता है और 20 क्रेडिट वो स्किलिंग का कोर्स करता है, तब भी वो उस लेवल पे पहुंच सकता है, या वो 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट करता है, तब भी उस लेवल पे पहुंच सकता है विद सम एंट्री मॉड्यूल। तो डिफरेंट वेज हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। मल्टीपल जगह एंटर कर सकता है, मल्टीपल जगह एग्जिट कर सकता है। सो आई जस्ट वांटेड टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस and I hope once this comes out, this is notified, this will be very useful to the entire ecosystem. Thank you. हाँ, any questions? हाँ, किन सर्विसेज के लिए पूछ रहे हैं आप? Please come again. Please repeat your question. I couldn't hear. Question. हाँ जी, हाँ जी. Are central administrative services connected by UPSC for IAS, IPS? हाँ. हाँ. ये जो ग्रेजुएशन का अंडर ग्रेजुएट, हाँ जी, हाँ. will they recognize? Yes, they will. कोई नोटिफिकेशन इशू हो गया? Yes. यहाँ भी होना है? आपको समझाया नहीं 1 मिनट पहले कि ये अभी नोटिफाई होना है? होना है अभी. आपको समझाया ना अभी मैंने. It is still work in progress. This is what I said. So probably you didn't hear. हाँ जी, next question. जी. ठीक है. मैं अपनी गल करा, पापा आर्मी से भेजता हॉस्टल खुद ही बना लेंदे सी ਅਸੀਂ ਤੇ किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने कुछ नहीं. ਅੱਜ ਅਸੀਂ इंटरव्यू करन ਜਾਂਦੇ ਆ, हाँ. शेफ ही नहीं मिलते. 4 साल की डिग्री लेके घूम रहे, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ कि पनीर टिक्का ला दे, ਉਹ पनीर टिक्का नहीं लाना आंदा. लव भाई ये इनको अपने सेक्टर स्किल काउंसिल से मिलवाओ और उनका जो बेस्ट सेंटर है या उनका जो सेंटर के ढाबे के आसपास है उनसे मिलवाओ. बट सर अगर 1 मिनट, अगर इनको वहाँ से चर्च का बंदा नहीं मिलता तो उस सेंटर को मैं नहीं छोड़ूंगा. नहीं, बट सर आई एम नॉट नेमिंग द प्राइवेट यूनिवर्सिटी. आई हैव बीन इंटरव्यूइंग all the top institutes. IHM, so it's a government institute. They don't know, the kids don't know, you know, after 4 years or 3 years of education. But I've been talking to, you know, private number 1 in top number 3 universities in India. It's very difficult to find. I'm serious. I agree with you कि आज अगर कोई जाए और कहे कि मुझे अच्छा इलेक्ट्रिशियन चाहिए, मुझे अच्छा प्लम्बर चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट. सो द पॉइंट इज़ कि हम, मेरे को अगर वो 12वीं के पास वो हॉस्टल में डाल दिया पेरेंट्स ने, तो मैं अपने आप ही सीख गया ना. मैं आज हम 4 साल की डिग्री करा रहे हैं, धंधे खोले हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ ने, और उसके बाद 20 lakhs पीपल स्पेंड ऑन, यू नो, गेटिंग दी फूड होटल मैनेजमेंट डिग्री, और उसके बाद उसको सिंपल, उसको पता ही नहीं है हाइजीन क्या है, कुछ ही कैन नॉट स्टैंड इन द किचन, यू नो. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज नाउ. पहले क्या होता था, पहले सिस्टम में था कि असेसमेंट जो है, असेसमेंट वाज नॉट इंडिपेंडेंट. फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सेपरेटली रिकॉग्नाइजिंग द असेसमेंट एजेंसीज एंड वी आर सेपरेटली रिकॉग्नाइजिंग द अवार्डिंग बॉडीज. जो उसको पढ़ा रहा है उसको इस बात का हक नहीं दिया कि आप इसी को असेस करो, क्योंकि वो तो करेगा, जो पढ़ाएगा उसी पे सवाल पूछेगा, उसको पास करके उसको बाजार में भेज देगा. अभी असेसमेंट एजेंसी जिस किस्म की आ रही हैं बाज़ार में, जो हमने अभी अप्रूव की हैं, उसमें पियर्सन व्यू जैसी एजेंसीज हैं कि बच्चा उसको ना धोखा दे सकता है, ना वो गलत किसी को पास करे. TCS आयन है, ग्लोबल लेवल की एजेंसी है. SHL है, ग्लोबल लेवल की एजेंसी है. तो वो एजेंसियां अब इकोसिस्टम में ला रहे हैं, इसको टोटली इंडिपेंडेंट कर दिया है. You will see this change. This will take about 6 months time. Still, it will take some time. But this is, as you said, electrician के लिए भी है. My sister runs. सबके लिए, सबके लिए. My sister runs a salon. Yes, उसके absolutely लिए right. भी मिलता है. Absolutely right. Well, that your point is well taken. मतलब Answer धंधे that खोले question हुए that now we are changing that system. और वो ये ना, एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ वो नहीं है. बच्चे 4 साल की डिग्री लेके लगे, नौकरी नहीं है. हम यार फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल लेना, बाद में किसी और को सवाल तो पूछने दो. मतलब the point is, see, you work at a senior level, so Your that point is well taken. yeah.
आई एम एग्री टू दैट पॉइंट.